Genome and its organization in prokaryotes and eukaryotes, chromatin and its basic concept. Firstly, what do you mean by genome? That is the word genome coined by German botanist Hans Winkler in 1920 was derived simply by combining gene and the final syllable of chromosome. If not specified, genome usually refer to the nuclear genome. It is a part of the nuclear genome. An organism's genome is defined as a complete haploid genetic component of a typical cell. The total amount of genetic material is stored as DNA. That is the material which is stored in a DNA is known as a genome. The nuclear genome refers to the DNA in the chromosome contained in the nucleosome. The first complete genome to be sequenced was that of the bacterium Haemophilus influenza in 1995. The first eukaryotic genome sequence, that of the yeast Saccharomyces cerevisiae, followed in 1996. The genome sequence for the bacterium Escherichia coli, that is E. coli, became available in 1997. These 3 points are very important. The first complete genome to be sequenced in the Haemophilus influenza in 1995 and eukaryotic genome को सबसे पहले देखा गया था किसमें? ईस्ट में, Saccharomyces cerevisiae में, फॉलोड इन कब देखा गया था? 1996 में. और अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो किसमें देखा गया था? E. coli में, जिसको 1997 में देखा गया था. What is the difference between prokaryotes and eukaryotes genome? Prokaryotes और eukaryotes के genome में क्या differences है? Prokaryotes का genome अगर DNA हम देखते हैं, it is a single cell, not in a present in a cell membrane, but in a eukaryotes it is a single and multi cells. In prokaryotes there have no nucleus, that's why DNA is present in the cytoplasm. In eukaryote the present in a nucleus, that's why DNA is present in a nucleus. In prokaryote, one piece of circular DNA, that is a spherical shape of DNA, is present in the cytoplasm. But in eukaryotes, it is a form in a chromosome, that is a histone proteins are combined to DNA and form a chromosome-like structure. In prokaryotes, no mRNA, post-transcriptional modification, mRNA का फॉर्मेशन ही नहीं होता है. That's why यहाँ पे ना ट्रांसक्रिप्शन होगा ना ट्रांसलेशन होगा. But in eukaryotes, that is present in a replication, transcription and translation process. That's why it combine the process of processing technique, that is a mRNA processing, polyadenization technique and exon intron splicing. जीनोम ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में जीनोम का ऑर्गेनाइजेशन या उत्पत्ति हमारी किस प्रकार से हुई थी? ई कोलाई का अगर हम जीनोम देखें तो उसमें कितने बेस पेयर होते हैं? दैट इज 4 × 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं. अप्रॉक्स या मोर देन 90% ऑफ डीएनए इनकोड प्रोटीन. इसमें मोर देन 90% जो डीएनए है वो प्रोटीन को इनकोड करती है. लेस देन 10% ही ऐसी होती है जो प्रोटीन को इनकोड नहीं करती है. लाइक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेम्ब्रेन से प्रेजेंट नहीं होता है. सर्कुलर डीएनए सुपरक्वाइल डोमेन, हिस्टोन नॉट प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट फॉर्म अ क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर. Prokaryote genome generally contain one large circular piece of DNA referred to as chromosome, not a true chromosome in eukaryote cells. In comparison to the eukaryotic cells, the prokaryotes not contain a chromosome. Some bacteria have linear chromosomes. Many bacteria have a small circular DNA structure called plasmid. That is, a plasmid is also a double circular extra part of a DNA, which can be swapped between neighbors and across bacteria species. What is the genome organization in eukaryotes? The genome of yeast, for example, in eukaryotes case, we contain a yeast cell. The genome of yeast cell contain 1.35 × 10⁷ base pair of DNA is present in the genome in eukaryotes. A small fraction of the total DNA encode protein. यहाँ पे जितना भी small fraction भी DNA का होता है, हर एक DNA के पार्ट से प्रोटीन को इनकोड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे DNA के हर एक पार्ट से ट्रांसक्रिप्शन होता है, एमआरएनए बनता है, एमआरएनए प्रोसेसिंग करता है, फिर वो एमआरएनए ई मैच्योर से मैच्योर में कन्वर्ट होता है, और जब मैच्योर एमआरएनए बन जाता है आफ्टर द फुली पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, देन इट इनकोड द प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन टेक्निक. A small fraction of the total DNA encodes protein. Many repeats of non-coding sequences. In eukaryotes case, they are present in a coding and non-coding sequence. You also know that coding is also known as exon and non-coding is known as introns. Exons is form a protein, but intron doesn't not form a protein. All chromosomes are contained in membrane-bound nucleus. DNA is divided into 2 or more chromosomes. A set of 5 types of histones proteins are present in a eukaryotes.
DNA packaging and gene expression regulation. Human genome, that is a human genome project is given in this when genome organization and prokaryotes and eukaryotes will be complete fully, then human genome generally information. Genetic material in human is stored in two organelles, that is a nucleus and mitochondria. It is a very important point for your mid examination. That is about 3200 mega base pair. That is a nucleus is contained about 3200 mega base pair and mitochondria is contained 16.6 kilo base pair. Human chromosome are not of equal sizes. The smallest chromosome number is 21 and the largest chromosome number 1. Only a very small amount of human DNA is responsible for the difference among humans in that among all organisms. It is very important, that is the segment of a gene. There contain a promoter, codon for protein, stop codon. Stop codon is known as a termination codon. There are three types of termination codon, that is a UAA, UAG and UGA. There are three types of termination codon. When it is present in the segment of a gene, the transcription as well as the translation process will be stopped now. Promoter is the reason where RNA polymerase as well as the DNA polymerase are bind in, and its process will be started now, and it is the initiator point of the gene. Number of gene at least that is 100,000. However, the number of protein encoding gene is only 20,000 to 25,000 genes. The segment of gene is contain promoter, code for protein, stop codon, and there are two types of segment, that is one gene and another is one gene. It is a human genome and it contain a human genome project. There are 23 pairs of chromosome which is contain a approx 3 into 10 ki power 9 base pair, and approx 3 into 10 ki power 9 base pair is contained into two parts, that more than 90% non-coding sequences are present and less than 10% coding sequences. Coding sequences mean it is an exon part which will be contain a protein, and 90% non-coding sequences mean it will be not contain a protein, not exist the transcription as well as translation process. Less than 10% coding sequence contain gene, and gene is contain a two parts, that is 2000 to 4000 genes, that is the average chromosome, and second part is gene per 30 to 60 kb. Second one is a mitochondria DNA. Mitochondria DNA is a single double standard circular molecule, that is the same, that is a mitochondria DNA. That is a mitochondria DNA single double standard just like a plasmid. There are several copies in each mitochondria and there are many mitochondria in each your cells. In for our information, yeah, we know already that eukaryotic cell contain many types of mitochondria which contain energy in our body. Mitochondria DNA is similar to prokaryotic DNA. There are no histone or any other protein associated with mitochondria DNA. माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए बिल्कुल हमारे प्रोकैरियोटिक डीएनए की तरह होता है. इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती है और अदर टाइप्स की अगर प्रोटीन्स है तो वो एसोसिएट करती है माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए में. द जीन कंटेन नो इंट्रॉन्स मैटरनल इनहेरिटेंस. इस वजह से इसमें जीन ना होने की वजह से, इंट्रॉन्स ना होने की वजह से इसको मैटरनल इनहेरिटेंस कहते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को पैरेंटल इनहेरिटेंस कहते हैं. Because it is in a highly oxidizing environment, it has a much higher rate of mutation than nuclear DNA. The gene in mitochondria DNA code for mitochondria ribosome and transfer RNA, that is a tRNA. Some gene code for polypeptide subunit, that is a protein of the electron transport chain, that is a ETC, common in all mitochondria. You also know that ETC chain is contained in a mitochondria. Mitochondria DNA is contained as 16.6 kb double standard circular which encodes 37 mitochondrial gene, where 13 encode for polypeptide involved in the respiratory chain, that is a ETC chain, and other, that is a 24 mitochondria genes contain a 22 transfer RNA and 2 ribosomal RNA. Second one is the complete part of your genome, where what is the mean by genome, what is the composition of genome, and where organization of genome, that is prokaryotes, eukaryotes and mitochondria genomes are present where. Second one is a chromatin. You also previous class is known that chromatin, the nucleoprotein material of chromosome, it contain a nucleus plus protein. Chromatin is made up of DNA plus protein. Protein, which type of protein? That is histone protein.
हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लियस दैट इज डीएनए से मिलकर हमारा क्रोमेटिन बना है, और उसी का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जब बनता है तब वो हमारा किसका फॉर्म होता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। क्रोमेटिन इज एसेंशियली द सब्सटेंस ऑफ क्रोमोसोम, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए अटैच्ड टू अ प्रोटीन स्ट्रक्चर। व्हेन डीएनए इज complicated attached to the histone protein to form a chromatin, and when multiple histone and DNA wrap around the, that is a form a nucleosome structure, and when it's show in a microscope it show a chromosome like structure. क्रोमेटिन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। इसका मतलब है कि क्रोमेटिन हमारा दो पार्ट से बना है, एक डीएनए से और प्रोटीन से, और वो प्रोटीन कौन सी हमारी हिस्टोन प्रोटीन है। क्रोमेटिन इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ आवर सेल्स। Chromatin is composed of DNA and histones that are packed into thin stringy fibers. These chromatin fibers are not condensed but can exist in either a compact form. If DNA is present in a compact form, that is known as heterochromatin. If chromatin is present in a non-compact form, it is known as euchromatin. Chromatin is two types, that is heterochromatin and euchromatin. This is the structure of chromatin, that is a chromosome. अगर हम यहाँ से देखें, ये हमारा DNA है, that is a double helical structure of DNA. When beads of its tank DNA bounds of nucleosome, when DNA is combined to the histone protein, it show are just like that. This is histone protein. ठीक, हिस्टोन प्रोटीन जब हमारे डीएनए से रैप करती है तो ये हमारा किसका फॉर्मेशन करता है, एक तरह न्यूक्लियोसोम्स का, पेन का। ये हमारा क्या है, डीएनए है, और डीएनए जब ये पूरा रैप करता है, इट इज अ डबल स्टैंडर्ड, और हमारा बहुत ही साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। और जब इसमें हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पहले से आपको बता चुके हैं, जैसे H2A, H2B, H3, H4 जो कि डबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए 8 ऑक्टामर फॉर्म में होते हैं। और जब ये 8 ऑक्टामर फॉर्म हमारे डीएनए से रैप करते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन हमारा कर लेते हैं, न्यूक्लियोसोम का कर लेते हैं। और जब बहुत सारे डीएनए रैप करके हिस्टोन प्रोटीन से तो क्रोमेटिन फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। एंड व्हेन इट इज शो इन अ माइक्रोस्कोप, और जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, हमारा क्रोमोसोम का बनता है। और जो हिस्टोन प्रोटीन है, इसमें अगर आप देखेंगे हिस्टोन प्रोटीन्स में अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको ऑक्टामर फॉर्म दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ये H2A होगा, यहाँ पे आपका H2A का दूसरा फॉर्म होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, S3 होगा, फिर S3A होगा, S3B होगा, और यहाँ पे पास में ही लिंकर आपका H1 भी प्रेजेंट होता है, जो कि सपोर्टिंग का काम करता है कि हिस्टोन है, प्रोटीन है, वो डीएनए से कहीं अलग ना हो जाए, तो H1 हमारा लिंकर प्रोटीन का काम करता है। It is a concept of chromatin, chromosome and chromatid. What is the relationship of chromatin with chromosome and chromatids? कि क्रोमेटिन का क्या रिलेशनशिप है हमारा क्रोमोसोम से और क्या रिलेशनशिप है हमारा क्रोमेटिड से। तो क्रोमेटिन के बारे में आप जान गए कि क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट, दैट इज डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। एंड क्रोमोसोम्स क्या हो गया, क्रोमोसोम्स आर सिंगल स्टैंडर्ड ग्रुपिंग ऑफ कंडेंस क्रोमेटिन। जब क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर कंडेंस फॉर्म में आ जाएगा एंड इट विल बी सीन अ माइक्रोस्कोप, तो हमें वो एक्स लाइक फॉर्म स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। क्रोमेटिड क्या होता है, क्रोमेटिड के बारे में अगर हमारा क्रोमोसोम्स के जो 2 स्टैंड्स हैं, ये हमारे 2 स्टैंड्स हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड, और ये भी हमारा क्या होगा, क्रोमेटिड होगा। तो इसका मतलब है 2 टाइप्स क्रोमेटिड्स आर प्रेजेंट, एंड यहाँ पे हमारे सेंट्रोमियर से ये अटैच रहेगा और ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा क्रोमोसोम्स का। What is the difference between heterochromatin and euchromatin? You also know that heterochromatin and euchromatin is a part of the chromatin. ठीक, Emil His is very important. That is the Emil His in the year 1928 coined the term heterochromatin and euchromatin. सबसे पहले heterochromatin और euchromatin का जो टर्म था वो Emil His ने 1928 में दिया था। Heterochromatin such part of the chromosome which is firmly packed form and are genetically inactive. जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो क्रोमोसोम से कंडेंस पार्ट में प्रेजेंट होता है, और ये अगर नेचर में देखें तो ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। कैसा होता है, इनएक्टिव होता है।
वाइल यूक्रोमेटिन इज अनकॉइल्ड, लूजली पैक्ड होता है डीएनए से, और ये हमारा कहते हो जेनेटिकली एक्टिव होता है, और यही आगे प्रोसेस करता है आपकी ट्रांसक्रिप्शन की, ट्रांसलेशन की, और आपके एमआरएनए और देन प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है. When the non-dividing cell of the nucleus were observed under the light microscope, it exhibited the two regions on the ground of कंसंट्रेशन और इंटेंसिटी ऑफ स्टेनिंग. और जब हम इसकी स्टेनिंग करते हैं क्रोमेटिन की, अगर हम ब्लू स्टेनिंग करें तो हमको कुछ ऐसे पार्ट देते हैं, कुछ हमारी डार्क स्टेनिंग होती है, कुछ हमारी लाइट स्टेनिंग होती है. तो डार्क अगर स्टेनिंग हमको शो कर रही है तो इसका मतलब वो हेट्रोक्रोमेटिन है, और लाइट स्टेनिंग अगर शो कर रही है तो दैट इज ए यूक्रोमेटिन है. आप ऐसे भी क्रोमेटिन को पहचान सकते हैं कि विच पार्ट इज नोन एज ए हेट्रोक्रोमेटिन एंड विच पार्ट इज अ क्रोमेटिन. अगर ब्लू डाई से हम इसको स्टेन करते हैं एंड आफ्टर डी स्टेनिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिस्टिल्ड वाटर, तो लाइट स्टेन है तो दैट इज नोन एज यूक्रोमेटिन, और डार्क स्टेन है तो दैट इज नोन एज हेट्रोक्रोमेटिन. इसके साथ साथ आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि अगर डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन बहुत ही टाइटली पैक्ड है तो हेट्रोक्रोमेटिन है, और अगर हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से लूजली पैक्ड है तो वो हमारा यूक्रोमेटिन है. हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो जेनेटिकली इनएक्टिव होता है, कुछ काम नहीं करता है, कोडिंग नहीं करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता है. बट इन यूक्रोमेटिन इज अनकॉइल्ड, लूजली होता है, और ये जेनेटिकली एक्टिव होता है, और आगे की प्रोसेस की प्री एमआरएनए का फॉर्मेशन, पोस्ट एमआरएनए का फॉर्मेशन, देन आपका लैक ऑपरेंट जीन रेगुलेशन तक हमारा ये काम करता है. अराउंड 90% ऑफ टोटल ह्यूमन जीनोम इज यूक्रोमेटिन. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि अबाउट 90% ऑफ द टोटल ह्यूमन जीनोम इज यूक्रोमेटिन. इसी वजह से जो डीएनए हम सभी की बॉडी में डीएनए सेम होता है, 90% एकदम सेम होता है, जो 10% या 1% का वेरिएशन दिखता है, जिसकी वजह से हम लोग अलग अलग दिखाई देते हैं कि 1% जो वेरिएशन होने की वजह से ही आपका चेहरा मेरे चेहरे में डिफरेंस दिखता है. अराउंड 90% ऑफ द टोटल ह्यूमन जीनोम इज यूक्रोमेटिन. दे आर द पार्ट्स ऑफ क्रोमेटिन एंड participate in the protection of DNA in the genome present inside the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है इसी के आगे प्रोसेस करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, देन ट्रांसक्रिप्शन करेगा, देन ट्रांसलेशन करेगा, और प्रोटीन के पार्ट को कोड करेगा. इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन. दैट इज आपको दिख रहा होगा कि आपका जो बीच का पार्ट क्या है, ये सेंट्रोमियर है. इट इज अटैच इन अ क्रोमेटिड. ये हमारे क्या है, क्रोमेटिड है. और ये जो आपको स्टेनिंग दिखाई दे रही है, स्टेनिंग का पार्ट अगर डार्क स्टेनिंग है तो दैट इज नोन एज यूक्रोमेटिन, और आपका लाइट स्टेनिंग है तो वो हमारा कहलाता है हेट्रोक्रोमेटिन. व्हेन हम इट सी इन अ माइक्रोस्कोप, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब हमें ये शो होगा. अब ये इंपॉर्टेंट जो आपको पहले से होमवर्क भी दिया गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन. हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में क्या डिफरेंस है. तो हेट्रोक्रोमेटिन का फर्स्ट पहला अगर देखें कि व्हेन डीएनए इज रैप अराउंड अ compact structure with the help of a histone proteins, that is known as heterochromatin, and the loosely pack of DNA in the chromosome is called as a यूक्रोमेटिन. अगर डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर डीएनए की डेंसिटी हाई है तो वो हेट्रोक्रोमेटिन होगा, और लो डेंसिटी है तो वो हमारा यूक्रोमेटिन होगा. अगर स्टेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर स्टेन डार्क कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ए ब्लू डाई से तो वो हमारा हेट्रोक्रोमेटिन होगा, और लाइटली स्टेन कर रहा है तो वो हमारा यूक्रोमेटिन होगा. कहां पे प्रेजेंट होता है? These are found at the periphery of the nucleus in eukaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है हेट्रोक्रोमेटिन, जबकि जो आपका यूकैरोमेटिन है दिस इज बाउंड इन द इनर बॉडी ऑफ द न्यूक्लियस. जो हमारे आपने देखो न्यूक्लियस होगा, फिर उसके अंदर न्यूक्लियोलस होगा, तब डीएनए प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये जो हमारा यूक्रोमेटिन है वो कहां पे प्रेजेंट होगा? हमारे न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होगा. ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी देखें तो आप पहले भी देख चुके हैं कि जब अगर वो टाइटली पैक्ड है इस वजह से वो इनएक्टिव रहता है, तो दे शो लिटिल और नो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी. ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी में मीन हो गया कि दे विल बी नॉट फॉर्म एमआरएनए एंड कंटिन्यू द प्रोसेस फॉर द प्री प्रोसेसिंग, दैट इज ए एमआरएनए प्रोसेसिंग, 3' पॉलीएडेनाइजेशन, स्प्लाइसिंग है, ये कुछ भी नहीं करता है. जबकि यूक्रोमेटिन एक्टिवेट रहता है ड्यू टू द स्टेनिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू द लूजली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ ए हिस्टोन प्रोटीन. अदर फीचर्स की बात करें तो दे आर कॉम्पैक्टली कॉइल्ड होता है ये हेट्रोक्रोमेटिन, और यूक्रोमेटिन आपका लूजली कॉइल्ड होता है. दे आर लेट रेप्लिकेटिव, रेप्लिकेशन इसका बहुत ही लेट होता है, जबकि इसका रेप्लिकेशन अर्ली रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है. अब यहाँ पे आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम एंड क्रोमोसोम्स है. इसके एक एक पॉइंट्स को अगर आप देखें, ये फर्स्ट पॉइंट को एक एक पॉइंट से पढ़ते शुरू करते हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या है? ये आपका डीएनए है. आप लोग पहले से जानते हैं डीएनए से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर,
ठीक है, इसकी भित्त कितनी है हमारी 2 नैनोमीटर है। एट द सिंपलेस्ट लेवल क्रोमेटिन इज डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। द सेकंड पार्ट इज डीएनए इज कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। जब डीएनए हमारा सिंगल है, डबल स्टैंडर्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, known as a DNA, that is a double helical structure. When DNA is complex with histone, जब इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन रैप कर जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। तो यहाँ पे जो आपको पर्पल कलर की दिख रही है ये आपकी हिस्टोन प्रोटीन है, और जो आपको येलो कलर की दिखाई दे रही है ये आपकी लिंकर हिस्टोन प्रोटीन है, जिसको हम H1 के नाम से जानते हैं। थर्ड पॉइंट आप देखिए, ये वाला पॉइंट, ईच न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन, दैट इज ऑक्टामर फॉर्म। हम आपको बता चुके H2A, H2B, H3A, H3B, ये आपके ऑक्टामर, इसका मतलब है H2A के 2 पार्ट होंगे, H2B के भी 2 पार्ट होंगे, H3 के भी 2 पार्ट होंगे, H4 के भी 2 पार्ट होंगे। 8 हिस्टोन प्रोटीन अराउंड द डीएनए रैप 165 टाइम्स। जब 1.65 टाइम्स रैप करता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, तब कहीं जाके एक न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब है 1 न्यूक्लियोसोम इक्वल टू द 1 protein plus 1.65 times wrap the DNA with histone protein is known as nucleosome. The fourth point is the chromosome consists of a nucleosome plus the H1 protein. क्रोमोटोसोम कब कहलाएगा, जब न्यूक्लियोसोम्स तब तक होगा जब आपकी हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से रैप करेगी, लेकिन H1 प्रोटीन भी अगर उसके साथ अटैच्ड हो गई है कि वो जो ऑक्टामर फॉर्म है वो अलग ना हो जाए, लूज ना हो जाए डीएनए से, तो इसको कंबाइन, इसको जोड़ने का काम हमारा कौन करता है, हिस्टोन 1 प्रोटीन करती है। अगर हिस्टोन H1 इससे आकर बाइंड कर जाएगा तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा क्रोमोटोसोम। अगर H1 नहीं बाइंड करेगा तो न्यूक्लियोसोम। व्हेन H1 इज बाइंड टू द ऑक्टामर फॉर्म ऑफ ए डीएनए, दैट इज नोन एज क्रोमोटोसोम। फिफ्थ पॉइंट इज दिस, द न्यूक्लियोसोम फोल्ड अप टू प्रोड्यूस 30 नैनोमीटर फाइबर। और जब न्यूक्लियोसोम अगेन फोल्ड करते करते 30 नैनोमीटर फाइबर का फॉर्मेशन इस तरीके से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ये बना लेता है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, 6 पॉइंट्स अगर देखें, डैट फॉर्म लूप एवरेज इन 300 नैनोमीटर इन लेंथ। फिर ये लूपिंग का फॉर्मेशन शुरू करता है। इट इज ए स्ट्रक्चर लाइक ए लूप का फॉर्मेशन करता है, हेयर लिक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, और फिर टाइटली क्वाइल हो जाता है 250 नैनोमीटर। इसका मतलब है 300 नैनोमीटर से फिर ये अपने आप को लूजली कम करता है, 250 नैनोमीटर करता है, और तब कहीं जाके आपको माइक्रोस्कोप में इस टाइप का का स्ट्रक्चर आपको शो करता है, जो आप इस तरीके ये दिख रहे हैं, दैट इज नोन एज क्रोमोसोम। व्हेन इट इज सो इन अ माइक्रोस्कोप, तब ये हमको 1400 nm का नैनोमीटर का ये शो करता है, तभी इसकी